Hello and welcome to the new chapter, that is trigonometry. Now, this chapter, trigonometry, the name itself suggests it's a Greek word. If you just split up this word, trigonometry, it is tri, means three, gon, matlab sides, metry means measurement. That means measurement of three sides, basically. In the earlier classes, we studied something about triangles and their sides having some relationship with their angles. So, अगर एक triangle में, कोई भी triangle में, if you take any random triangle, say triangle ABC, if this is the angle, if we are considering this angle theta, and the side opposite to this theta is AC, है ना बेटा? So अगर ये एंगल बड़ा है तो इसका अपोजिट में जो साइड रहेगा वो भी बड़ा रहेगा. I mean to say that there is a relationship between the lengths of the sides and the angles facing them. जैसे कि हमने देखा था कि in an equilateral triangle, if all three angles are equal, all three sides are equal. In an isosceles triangle, if two sides are equal, then the angles opposite to them are also equal. And in a scalene triangle, since no two sides are equal in that triangle, no two angles will be also equal. And then we studied something about inequalities of triangle in the 9th standard, कि अगर कोई triangle के अंदर एक एंगल बड़ा है एक एंगल छोटा है, आउट ऑफ ऑल थ्री दो एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो बड़े एंगल के अपोजिट में जो साइड है दैट विल बी बड़ा, और छोटे एंगल के अपोजिट में जो साइड रहेगा दैट विल बी छोटा साइड, है ना? सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज अल्फा, एंड इट इज गिवन दैट थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा. ये थीटा जो ये एंगल जो है दिस इज ग्रेटर देन दिस एंगल, मतलब ये एंगल इससे बड़ा है, तो इसके अपोजिट में जो साइड रहेगा वो बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू द साइड अपोजिट टू दिस एंगल, राइट? सो ये हमने 9th स्टैंडर्ड में यहाँ तक पढ़ चुके थे हम कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स. In the 10th standard, we have to study this chapter trigonometry. In fact, I was just waiting for the HRD minister to announce some syllabus. उन्होंने बताया था कि some 30% syllabus will be taken out of this because of corona and all. So I was just thinking कि थोड़ा सा वेट करके हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे. Then later on I realized that ये एक चैप्टर है trigonometry. कुछ भी हो जाए ये चैप्टर को वो डिलीट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज 10th में हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वही ट्रिग्नोमेट्री आपको 11th में भी है, 12th में भी है. इनफैक्ट विदाउट ट्रिग्नोमेट्री आपका आगे का मैथमेटिक्स इज इम्पॉसिबल. तो इसीलिए आई थॉट व्हाई नॉट स्टार्ट विद दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, राइट? तो आगे जाके अभी जो हमको न्यूज़ आया है इसके हिसाब से विद इन 1 month दे आर गोइंग टू गिव द सिलेबस फॉर 10th मैथमेटिक्स, 10th साइंस एंड ऑल दिस थिंग्स. सो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिनको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, हम मतलब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इसीलिए मैंने ये चैप्टर शुरू किया है ट्रिग्नोमेट्री, राइट? नाउ एज फार एज 10th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज कंसर्न, we will be dealing with a right angle triangle, right? Now here, right angle triangle means एक ऐसा triangle जिसमें one of the angle is 90 degree. So this is any right angle triangle, say ABC, right angled at B. Now this trigonometry deals with the relationship between the sides and angles. To be more precise, it deals with the angles and the ratio of certain sides. Getting it? तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेमोरी बढ़ाना पड़ेगा. आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो इमीडिएटली आपके वो मेमोराइज कर लेना है आपको. ये फॉर्मूलेज रहते हैं एंड हमारे सिलेबस में ऑलमोस्ट ऑल 13% to 14% marks जो रहते हैं they are based on this chapter, right? So make sure that
आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज आगे जाके जो आप 11th एंड 12th जो लोग साइंस करेंगे, तो अगर उनको ये 10th का मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आया तो वो 11th एंड 12th में भी उनको प्रॉब्लम आएगा. तो मेक श्योर दैट यू क्लैरिफाई योर डाउट्स. 10th के जो डाउट्स हैं वो इमीडिएटली वो क्लैरिफाई हो जाने चाहिए. राइट नाउ it has been observed that not only there is a relationship between the angles and the sides, it is established fact that there is a relationship between a particular angle and the ratio of the sides. Now आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको एक आइडिया आने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको. सपोज करो कि मैं यहाँ से एक और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ विच इज पैरेलल टू दिस वन. मतलब ABC हो गया, सपोज दिस इज D एंड दिस इज E. Now since AB is parallel to DE and since this angle is 90, तो ये एंगल भी 90 है. राइट हो गया. Now as far as if I consider this angle, so in a right angle triangle one angle is 90, तो obviously बचे हुए दोनों angles will be acute angles, है ना. If I consider triangle ABC, इसमें B is 90, तो C and A will be acute. In triangle DEC, this angle is acute, so definitely this angle is also acute angle, right? So we'll come to that one afterwards. Suppose if I denote this angle by a Greek alphabet theta, अगर हम इस एंगल को थीटा से डिनोट करें. राइट नाउ जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्राइंगल ABC. ये बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है आपको. ये बड़े ट्राइंगल में ट्राइंगल ABC में साइड AB एंड साइड BC, दीज आर द टू परपेंडिकुलर साइड्स, है ना. और ये जो साइड AC है, इट इज द साइड अपोजिट टू 90, तो इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस. नाउ विथ रेफरेंस टू दिस एंगल थीटा, थोड़ी देर के लिए हम ये जो बीच का पार्ट है इसको निकाल देते हैं. राइट ये जो बीच है, सो यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है थीटा, इसके एग्जैक्टली अपोजिट में साइड हमारे पास कौन सा है? AB. सो AB इज अ साइड विच इज अपोजिट टू द गिवन एंगल और टू द अज्यूम्ड एंगल, है ना. अगर हमने ये एंगल को थीटा माना है तो उसका अपोजिट जो साइड रहेगा उसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड. राइट और ये एंगल के एडजेसेंट बाजू में जो साइड है उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड. दिस साइड इज एडजेसेंट साइड. और डेफिनेटली 90 डिग्रीज के अपोजिट में जो साइड है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूस. इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस. राइट सो वंस अगेन, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल्स रहेंगे. एक B is 90, तो A and C will be less than 90, है ना. सो ये एंगल, अगर कोई भी एंगल हमने अज्यूम किया, दिस एंगल इज थीटा, ये हमने कंसिडर किया है थीटा. फॉर दैट मैटर यू कैन कंसिडर दिस एंगल आल्सो. राइट तो विथ रेफरेंस टू दिस एंगल, दिस साइड, ये जो AB है, इज द अपोजिट साइड. विथ रेफरेंस टू दिस थीटा, उसके बाजू वाला जो साइड है, जो एडजेसेंट में जो साइड है, that side will be called as adjacent side. और 90 डिग्री से 90 डिग्री का जो एंगल है उसके अपोजिट में जो साइड है, that side will be called as hypotenuse. right यहाँ तक हो गया है. अभी हम इसके पहले जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया है, पॉइंट D, और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. सपोज दिस पॉइंट इज E. Since AB is parallel to DE, तो अगर ये एंगल 90 है तो दिस एंगल इज ऑल्सो 90. राइट ये आपके सिलेबस में सच इसको नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको. राइट इफ आई कंसिडर ट्राइंगल DEC, एंगल तो वही है लेकिन सिर्फ अपोजिट साइड बढ़ी, चेंज हो गया है. ये पहला अपोजिट साइड था जो हमने बड़ा ट्रायंगल कंसीडर किया था, है ना. अभी छोटा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो दिस इज द अपोजिट साइड, दिस इज द एडजेसेंट साइड. ये एडजेसेंट साइड हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया.
ना अगर मैं रेशो ले लूं, रेशो मतलब कंपैरिजन बाय डिवीजन, राइट? इफ आई टेक द रेशो AB, that means opposite side upon hypotenuse. If I consider triangle ABC, ये ट्राइंगल के रेफरेंस में इफ आई टेक द रेशो ऑफ अपोजिट साइड टू हाइपोटेन्यूस, तो बड़े ट्राइंगल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC, राइट? एंड विथ रेफरेंस टू द स्मॉलर ट्राइंगल DEC, सेम रेशियो अपोजिट साइड टू हाइपोटेन्यूज। ये छोटे ट्राइंगल में अपोजिट साइड कौन है, DC, sorry, opposite side is DE and hypotenuse is DC. It has been observed that ये side upon ये side, that is opposite side to hypotenuse for the bigger triangle, the ratio, and for the smaller triangle, the ratio of opposite side to the hypotenuse is same. ये क्या है, same है, right? What is same? AB upon AC is equal to DE upon DC. ये दोनों रेशियो विल बी इक्वल। तो जो साइंटिस्ट मैथमेटिशियंस ने जब ये सब चीजें देखा, उन्होंने नॉट ओनली दिस, फिर एडजेसेंट साइड टू हाइपोटेन्यूज का रेशियो भी सेम था, देन अपोजिट साइड टू एडजेसेंट साइड का रेशियो भी सेम था। देन जब उन्होंने बोला कि यार कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम अपोजिट साइड छोटा कर दें, अपोजिट साइड को मैंने छोटा कर दिया अंदर लेके, समथिंग लाइक दिस वन, एंगल तो वही है, एंगल चेंज नहीं हुआ। ये चेंज होने के बावजूद भी अपोजिट साइड चेंज हो गया, एडजेसेंट साइड चेंज हो गया, हाइपोटेन्यूज चेंज हो गया, लेकिन द रेशियो रिमेन्स द सेम। तो ये मैथमेटिशियन ने बोला यार ये हम इन रेशियो को कुछ नाम दे दें, राइट? तो वो नाम दे सकते थे, राम, श्याम, जॉन, अली, सलमान, कोई दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ग्रीक नाम दिया उन्होंने, राइट? तो ये जो रेशो है, इन रेशो के बारे में हमको सीखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द रेशो ऑफ साइड्स एज और विथ रेफरेंस टू द गिवन एंगल। सो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशोज रहते हैं उसमें एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली साइड्स, द रेशो ऑफ द साइड्स। दैट मीन्स अगर मैं ये एंगल कंसिडर कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे ट्राइंगल बताना पड़ेगा, कौन सा ट्राइंगल है, आई विल कंसीडर दिस ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल के अंदर है ना, तो रेशियो ऑफ अपोजिट साइड टू हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड टू हाइपोटेन्यूज, देन अपोजिट साइड टू एडजेसेंट साइड, ऐसे अलग अलग रेशियोज बनेंगे। तो हमको इन रेशियोज के नाम सीखना है, राइट? आपको याद रखना है। जैसे कि अब मैं ये जो बीच का जो था ये निकाल दिया मैंने, तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि एंगल वही है, तो रेशियो ऑफ अपोजिट साइड टू द हाइपोटेन्यूज रिमेन्स द सेम, राइट? ये मैंने बदला, हो गया ना। अभी आप लोगों के माइंड में थोड़ा सा एक डाउट आएगा कि अगर ये एक्यूट एंगल थीटा है, अगर हमने इस एंगल को कंसिडर किया थीटा या अल्फा और बीटा व्हाटएवर इट मे बी है, इन दैट केस इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है दैट विल बी कॉल्ड एज अपोजिट साइड, इस एंगल के एडजेसेंट में जो साइड रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज एडजेसेंट साइड। ओनली थिंग व्हिच डज नॉट चेंज विथ एंगल इज द हाइपोटेन्यूज, राइट? तो आर यू रेडी फॉर द नेम्स ऑफ द रेशियोज, राइट? मतलब ये हम स्टेट बोर्ड के बच्चों ने तो 9th में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, CBSE के बच्चों के लिए ये पूरा पूरा नया है। तो और जो स्टेट बोर्ड के बच्चे जो हैं उनके लिए जो है थोड़ा सा रिवीजन टाइप में रहेगा, एंड एक लेवल के बाद में दोनों का सेम हो जाएगा, राइट? तो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो स्टेट बोर्ड के बच्चों में ये बच्चों का ये जो है 9th में हो चुका है, बट स्टिल भूल गए रहेंगे तो हम याद करेंगे। और हमने 9th में सिर्फ 2 रेशियोज पढ़े थे, हमको 10th में पूरे 6 रेशियो पढ़ने हैं, राइट? तो सबसे पहले तो आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसी एंगल को थीटा पकड़ रहा हूं। रिमेंबर दैट अगर एंगल चेंज हुआ तो साइड्स भी चेंज हो जाएंगे, है ना?
So with reference to this theta, this is opposite side, this is adjacent side, and this is hypotenuse. So मैं opposite side को OS लिखता हूँ, adjacent side को I'll write it as adjacent side AS, hypotenuse को I'll simply write HP, hypotenuse. या simply height hypotenuse को H से denote करूँगा मैं, right? Now here सबसे पहला रेशियो जिसका नाम है साइन रेशियो, SINE, साइन रेशियो. एज आई टोल्ड यू, ये जो रेशियो का नाम है और वो रेशियो जो है इट इज रिलेटेड टू द एंगल. तो नाम तो दे दिया हमने, लेकिन वो नाम के साथ में इट इज इनकम्प्लीट अनलेस एंड अनटिल सम एंगल इज असाइन्ड टू इट. तो साइन ऑफ सर्टेन एंगल, तो हम ये एंगल कंसिडर कर रहे हैं, तो आई कॉल इट एज साइन थीटा, राइट. एक रेशियो का नाम क्या है, साइन रेशियो, और विथ एंगल आई कॉल इट एज साइन थीटा. यू कैन कॉल दिस एंगल एज साइन सी ऑल्सो बिकॉज दिस वर्टेक्स इज सी. तो मैं या तो साइन थीटा बोलूंगा या साइन सी बोलूंगा, एक ही बात है ना. अगर मुझे ये एंगल कंसिडर करना है तो ऐसे साइन ए, या फिर इसको एंगल को नाम देंगे हम अल्फा, साइन अल्फा, राइट. तो पहला जो नाम है इट इज साइन रेशियो, दैट इज साइन थीटा. रिमेंबर दैट अगर मैं सिर्फ साइन लिखूं उसका कोई मीनिंग ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो कोई एंगल से एसोसिएटेड है, राइट. सो आइदर आई हैव टू कॉल इट एज साइन सी, cos c, sorry, sin c, sin a, something of that sort, right. Now how do we define the sine ratio? मैं साइन जो है हमने नाम असाइन किया हुआ है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, सेक, कॉट टाइप ऑफ थिंग्स, राइट. ये नाम है, ये आपको याद हो जाना चाहिए. और ये साइन रेशियो को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो भी याद हो जाना चाहिए, है ना. तो साइन थीटा या साइन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड to hypotenuse. So sin theta is defined as opposite side to hypotenuse. ये चीज याद रखना है आपको. The moment I say sin theta तो आपके दिमाग में आना चाहिए opposite upon hypotenuse, right? या फिर conversely if I say opposite upon hypotenuse तो आपके दिमाग में आना चाहिए sin theta sir, right? So this is how you have to memorize these things. As I told you, maths does not deal with memory. It always deals with, say, analyzing. लेकिन कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो हमको याद करने पड़ते हैं, जिसमें ये कुछ है. Then sin theta or sin of any angle or sin ratio is defined as opposite side to hypotenuse, right? वैसे ही another ratio जिसको नाम दिया है हमने cos theta. cos theta. So we are considering this angle. So इसलिए मैंने cos theta लिखा. मैं इसको cos c भी लिख सकता था. अगर मैं ये एंगल डील कर रहा हूँ तो I could have written as cos a, right? So cos theta is defined as the ratio of adjacent side to hypotenuse. Adjacent side upon hypotenuse. Now ये दोनों जो रेशियो है ये बहुत ही बेसिक रेशियो, सबसे बेसिक रेशियो ये है. इनफैक्ट बाकी जितने भी रेशियोज हैं दे आर द डेरिवेशन ऑफ दीज टू. ये जो बाकी जो रेशियो, चार रेशियो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इन दो रेशियो के ऊपर ही डिपेंडेंट है. कैसे डिपेंडेंट है वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, फॉर द टाइम बीइंग, राइट. तो दो रेशियोज हमको कौन कौन से पढ़े हमने. साइन रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड टू हाइपोटेन्यूस. कॉस रेशियो is defined as the ratio of adjacent side to hypotenuse. Third ratio है, it is tan ratio or tan theta, tan of an angle. As I told you, without this angle, इसका कोई meaning ही नहीं है, right? So tan theta is defined as the ratio of opposite side to adjacent side. Opposite side to adjacent side, right? Sin, cos, tan. अभी आप लोगों को डाउट आएगा कि यार ये जो हमने रेशियोज बताए हैं अपोजिट साइड टू हाइपोटेन्यूज, तो रेशियो ऐसा भी इक्वल हो सकता है ना,
हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड, मतलब इनका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, एंड यू आर राइट। हमको आगे के जो रेशियोज हैं वो याद नहीं करने हैं, है ना, उसका डेफिनेशन तो कोई सिर्फ ये 3 याद करने हैं, और एक बार बहुत प्रैक्टिस करने के बाद में आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द मोमेंट इफ आई से साइन थीटा, तो आप बोलेंगे सर अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड टैन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंड इन तीनों रेशियो के रेसिप्रोकल मतलब से 5 है, 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होता है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा है ना, तो 1/sin थीटा, इसको हमने एक नाम दिया हुआ है ना, जो नाम हमने इसको दिया था, किसको, साइन थीटा, द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड टू हाइपोटेन्यूज, इस रेशियो को हमने साइन नाम दिया था। अभी मैं बोलूं कि भाई इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, राइट, उसको कुछ तो भी नाम देना पड़ेगा। इफ आई से अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, तो 1/sin थीटा नहीं बोलेंगे हम उसको, हालांकि इट इज 1/sin थीटा, बट उसको क्या नाम देंगे हम, रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज टू अपोजिट साइड, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कोसेक थीटा। सो द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, उसको हमने नाम क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा, राइट, कोसेक थीटा। The reciprocal of cos theta, that is 1/cos theta, इसको हमने नाम दिया है sec theta। अभी आप बोलेंगे यार ये नाम क्या है, sec, cosec and all these things। जब आप 11th and 12th में जाओगे तो उसका एक्चुअल नाम समझ में आएगा। जैसे कि ये जो tan थीटा जो आया है वो tangent से tan बना हुआ है ना। ये जो sec है, secant means a line which intersects the circle in 2 distinct points। तो ये डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने नामकरण किया हुआ है, you have to just remember those names, है ना बेटा। तो don't go into much deeper things कि नाम क्या है, कहाँ से लेके आए हैं, ये नाम को एज इट इज याद रखने हैं। जब आप 11th और 12th में जाओगे तो आपको एग्जैक्टली हमने उसको नाम टेंजेंट से क्यों लिया है, सीकेंट से क्यों लिया है, कोसिकेंट से क्यों लिया है, राइट, कोसाइन मतलब क्या है, ये सब चीज़ें हमको बाद में समझ में आएंगी, राइट। तो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, ये 3 रेशियोज, इसको हम बहुत ही प्राइमरी रेशियोज या बेसिक रेशियोज बोलते हैं, बिकॉज ये जो रेशियोज हैं ये डिराइव फ्रॉम द सेम थिंग। अभी आप बोलोगे टैन थीटा का रेसिप्रोकल है, उसका भी रेसिप्रोकल है ना, तो टैन थीटा का रेसिप्रोकल इज 1/tan थीटा which is known as cot theta। so cot आया है कोटेंजेंट से cot, right, forget, इसको हमको भूलना है। now basic ratios sin and cos, basic ratios है ना, tan को भी हमने बेसिक में डाल दिया है, लेकिन एक्चुअली बेसिक कौन कौन से हमारे पास, sin and cos। अभी आप बोलेंगे सर tan कहाँ से आया, तो हम sin और cos से tan मंगा सकते हैं, राइट। तो ये 3 को हम बेसिक पकड़ेंगे, sin, cos एंड tan। sin का रेसिप्रोकल इज कोसेक, cos का रेसिप्रोकल इज sec, tan का रेसिप्रोकल इज cot theta। now we can easily define, since sin theta is opposite side upon hypotenuse, तो उसका रेसिप्रोकल which is known as cosec theta हम डिफाइन करेंगे hypotenuse upon opposite side, sec theta is hypotenuse upon adjacent side, and cot theta is adjacent side upon opposite side, right। आज आपने इन सब चीजों को रटना है, गेटिंग अ पॉइंट, क्योंकि जब तक आप इसको रटोगे नहीं, ये चैप्टर आई टेल यू इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर, माय फेवरेट सब चैप्टर एक्चुअली। मतलब जब हमको हमारे टीचर्स पढ़ाते थे उस जमाने में, तो वी यूज टू वेट फॉर दिस लेक्चर, कि ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर जब शुरू हो जाता था तो हमको एक टीचर आते थे, हरीश शर्मा सर, एंड वी यूज टू वेट ये सर कब आएंगे और हमें कब शुरू करेंगे पढ़ाना, बिकॉज एक बार ये खत्म हो गया पढ़ना बेसिक्स, इसके बाद में वी हैव टू यूज दिस बेसिक्स टू सॉल्व सर्टन आइडेंटिटीज, राइट। और वो हमको डेली 10 आइडेंटिटीज देते थे और हमारे यहाँ पे कंपटीशन लगता था, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है।
लेकिन वो इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है जो लोगों को ये समझ में आ गया है कि भाई साइन रेशो क्या होता है, कॉस रेशो क्या होता है, टैन रेशो क्या रहता है, साइन के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं, कॉस के रेसिप्रोकल को, टैन के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसको नेग्लेक्ट कर दिया आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, आपको क्या, मुझे भी नहीं आएगा, राइट। तो ये जो है बेसिक, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री आ गया। अभी आपको एक डाउट मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बेसिक रेशियोज कौन कौन से हैं, साइन और कॉस। अच्छा, जैसे यहाँ पे हर एक रेशियो को हमने नाम दिया है, कॉस, टैन, है ना, ये सब चीजें। तो यहाँ पे साइन में एक्चुअली में ये SINE ही है, लेकिन हम उसको लिखते समय SIN ही लिखेंगे और पढ़ते समय भी साइन ही बोलेंगे, सिन नहीं बोलेंगे। तो SIN is sine, not sin, right? This is cos, this is tan, cosec, sec, cot, right? Now coming back to this one, कि आप बोलेंगे कि सर ये आप जो बोल रहे थे कि ये सिर्फ ये दो ही बेसिक है, बाकी सब तो इसी से आ जाएगा करके। इफ आई टेक द रेशियो ऑफ साइन थीटा टू कॉस थीटा, इधर लिख रहा हूं, देखिएगा आपको। इफ आई टेक द रेशियो ऑफ साइन थीटा टू कॉस थीटा, अब इसी डायग्राम में साइन थीटा is defined as opposite to hypotenuse, opposite side upon hypotenuse divided by cos theta. Cos theta is adjacent upon hypotenuse, so this is adjacent side upon hypotenuse. तो इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, so this has become opposite side upon adjacent side. And what is opposite side upon adjacent side? ये एक opposite side upon adjacent side is tan theta. That means this is tan theta. इसका मतलब है कि sin theta upon cos theta is tan theta. मतलब ये दो रेशो से ही हमको tan theta मिल गया है। So that is what I mean to say कि आपको बेसिक से बेसिक रेशो कौन कौन से हैं, sin and cos, और बाकी जितने भी रेशोज हमने देखे हुए हैं they have been derived from these two only, right? ऐसे डिराइव किया है या नहीं किया है? The moment if I ask you what is sin theta upon cos theta, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर tan theta। एग्जाम में ये एक मार्क के लिए पूछते भी हैं समटाइम्स, प्रूव दैट sin theta upon cos theta is tan theta। ये आपके जो मैं आपको जो बोल रहा था कि आइडेंटिटीज प्रूव करने हैं, उसमें ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं, राइट। तो आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, उसमें कोई एंगल को कंसिडर करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि इन ट्राइंगल ABC एंगल B is 90, सॉरी एंगल B is 90, तो sin theta is defined as opposite upon hypotenuse, cos theta is defined as adjacent side upon hypotenuse। Now taking ratios of sin theta and cos theta, sin theta and cos theta का रेशियो निकालेंगे हम, it becomes opposite side upon adjacent side, but opposite side upon adjacent side is nothing but it is tan theta, so it clearly proves that sin theta upon cos theta is tan theta, right? तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला आइडेंटिटी जो आज हमने पढ़ा है वो क्या है, sin theta upon cos theta is tan theta। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में आ भी गया होगा, देखो कि जब sin theta upon cos theta is tan theta, तो इनका जो रेसिप्रोकल, मतलब इसका रेसिप्रोकल विल बी इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, है ना। तो sin theta upon cos theta का रेसिप्रोकल विल बी cos theta upon sin theta is equal to 1 upon tan theta, because tan theta का reciprocal is 1 upon tan theta, but 1 upon tan theta is cot theta. It means that this is cot theta। तो आज मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, आपको सिर्फ यहीं तक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ये जो रेशियोज हैं इनके नाम, है ना, साइन के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं, कॉस के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं, टैन के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं, और ये दो आइडेंटिटीज हमने जो पढ़े हैं आज कौन कौन से हैं, sin theta upon cos theta is tan theta and cos theta upon sin theta is cot theta, right? समझ में नहीं आया है तो मुझे प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में वापस एक मैसेज दे देना, या फिर इसे कमेंट सेक्शन में आके वापस से कमेंट कर देना है, बिकॉज आई टेल यू वंस अगेन, आई डोंट वांट एनीबॉडी, आई जस्ट टेल कि ये जो चैप्टर है
ये चैप्टर those people who are trying for engineering or medical, without this chapter होगा नहीं, because physics deals with, I think 90% of the physics deals with this thing only. 100% of mathematics deals with this one, right? और जिनको इंजीनियरिंग और मेडिकल साइड में जाना है तो फिजिक्स इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, मैथ्स वो इंजीनियरिंग वालों बच्चों के लिए है, लेकिन फिजिक्स में भी जो है ऑलमोस्ट ऑल इसके बिना कुछ नहीं होता है, राइट? सो दिस इज मॉड्यूल 1 फॉर दिस. विल बी मीटिंग यू वंस अगेन इन मॉड्यूल 2. तब तक अगर जिनको ये समझ में आ गया है तो वो मॉड्यूल 2 जो है बहुत ही ईजी जाएगा, राइट? टिल देन, गुड बाय.